This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language instructor, and I am also an IELTS expert. And Alhamdulillah, it has been 20 years. I have been working in this field, and I have given my physical services in Karachi for 16 years. And since COVID came, I have been working online. आपने सुना होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ कंपनी नेम नोकिया. आप में से कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना था? यू कैन रेज योर हैंड. सर, मैंने सुना था. अभी थोड़ी देर में आपके पास माइक्स की सब ऑप्शंस भी आ जाएंगे जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा. बस दो लोगों ने सुना है नोकिया का नाम. इतनी जल्दी नोकिया के बारे में लोग भूल चुके हैं. दैट्स वेरी सैड. Nokia introduced very first mobile phone in Pakistan, and nobody believed that Nokia is no more in this Pakistan, or I would say in the world. But I think Nokia has sold millions, trillions of cell phones that nobody has ever sold till now. Right or wrong? Am I right? ये मेरी स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च है. तो आप टिक लगा सकते हैं, यस सर, यू आर राइट. No, when Nokia was being merged with iPhone or with Apple company, Apple सबने सुना होगा, iPhone सबके पास होगा, देखा होगा, सुना होगा, हर किसी की चाहत होगी. और जब नोकिया मर्ज हो रही थी एप्पल के साथ, do you know what was the last sentence that CEO said? वो जो आखिरी सेंटेंस था वो क्या था? सुनिएगा गौर से. We worked very hard. We worked morning and nights, but we don't understand what mistakes we made. But what I have realized, that we couldn't follow the pace of the world. The world changed so quickly that we couldn't change ourselves. That's why today we are saying goodbye, and we are being merged with another company. And Nokia is no more today. अल्फाजों का उर्दू तर्जुमा ये है कि दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हुई कि हमें नहीं पता कि हमने गलती क्या की, लेकिन आज हमारा कोई नामो निशान नहीं है. बेटा, similarly, the world is changing so quickly, and I took a step to start teaching online in 2020. So many of my friends, they also started with me, but I kept working harder and harder. I started it alone, but today, Alhamdulillah, 30 plus people are working on this platform. And I welcome all of you on this platform, SKH Online Education. And we are offering you two different courses: professional spoken English online course, and we also offer you IELTS online preparation. And if you are new on my channel, you have not subscribed it, so kindly subscribe it, because you will receive updated sessions on this channel. And if you cannot afford this course, so this channel will help you to improve your knowledge. I always mention when I start my session that YouTube channels just help you. YouTube channels just help you to improve your spoken English. They just improve your knowledge. They don't improve the way you speak. They don't improve fluency. Are you getting my point? YouTube चैनल से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो बोलने का मसला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव, जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपकी जो लिप्स सील्ड हुए हुए हैं, ये सील को जब तक आप नहीं हटाएंगे, आपका जो बोलने का मसला है वो हल नहीं है.
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। And this is one of this is only I think this is only platform which is working in Pakistan who is offering you 10 different language experts under one umbrella on one platform just in rupees 6,000 for 3 months. ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है। मैंने काफी ढूंढता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो आपको लाइव सेशंस दे रहा हो सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, तो मुझे जरूर बताइएगा। दिस कोर्स इज ऑफ 3 मंथ्स। ये 3 महीने का कोर्स है आपका। 20 नवंबर से आप लोगों का ऑफिशियली ये बैच स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 20 फरवरी तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। हो सकता है कुछ और मजीद एक्सटेंशन मिल जाए आप लोगों को, जो अक्सर मिल जाती है जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कुछ जरूरत है, पब्लिक डिमांड है। सो आई नॉर्मली एक्सटेंड फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स। आपको टोटल 10 टीचर्स की सर्विसेज है। 40% ऑफ चल रहा है। कुछ डेज का मैंने एक्सटेंशन दे दी है। आप आज और कल और परसों तक अवेल कर सकते हैं ऑफर। कोर्स कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल से हमें बेसिक्स आती है, वी नो बेसिक्स, बट यू विल कम टू नो दैट यू इवन डू नॉट नो द बेसिक्स। आज के सेशन में अंदाजा हो जाएगा क्योंकि मेरा लेक्चर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। आई विल नॉट टेक वेस्ट माई अ लॉट ऑफ टाइम हियर। कोर्स कंटेंट आपके सामने आ गया है। टाइमिंग्स को जरा समझ लीजिए। सुबह यू कैन ज्वाइन मी इन द मॉर्निंग एट 10 and by till at 1 o'clock. You can join me in the afternoon 3 to 6. You can join me at night 8 to 11. आपके जो कंपलसरी सेशंस है वो ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशन है, जो हर सूरत आपके होते हैं, कभी भी ऑफ नहीं जाते। 10 से 12, सुबह में, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। ये क्लासेस कभी ऑफ नहीं होती बिकॉज वी हैव मल्टीपल टीचर्स। एक्टिविटी सेशंस के अंदर हमारी आजकल जो क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी प्रोनाउंसिएशन सेशन। बट जो हमारी यूएस क्वालिफाइड टीचर है वो है यूएस क्वालिफाइड, तो उनका एक्सेंट यूएस का है, बट शी इज ऑन मेडिकल लीव नाउ। तो हमारा इस हफ्ते से प्रोनाउंसिएशन सेशन ऑफ हो गया है। अब हम एक्टिविटी के अंदर भी हम कुछ चीज़ें और प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज वो लाइन अप हो जाएंगी, टीचर्स अपडेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका रात का 10 से 11 का और शाम में 5 से 6 का एक्टिविटी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सुबह में चल रहा है एक्टिविटी सेशन। सुबह का जो एक्टिविटी सेशन होता है वो 1-to-1 डिस्कशन होती है। शाम में और रात में हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 4 तरह की एक्टिविटीज होती है। हमारी डिबेट्स होती है, रोल प्ले एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर हु इज नेक्स्ट करके एक होती है, और इसमें फ्लुएंसी टेस्ट हो रहे हो। तो आप किसी भी टाइम पर क्लास ले सकते हैं, वट एवर टाइम सूट्स यू। इफ यू मिस योर क्लास इन द मॉर्निंग यू कैन ज्वाइन मी इन द आफ्टरनून और यू कैन ज्वाइन मी एट नाइट। टाइमिंग्स के हवाले से क्लियर हो गया है, फीस के हवाले से क्लियर कर दिया। 6,000 फॉर 3 मंथ्स ऑफर चल रही है, फायदा उठा लीजिए। दिसंबर में सारी ऑफर्स खत्म हो जाएंगी, फिर आप पे कीजिएगा मंथली 3,000 प्लस 1,000 एडमिशन फीस, और 3 महीने के 10,000 रुपए आप सबमिट करवाएंगे। सो अवेल दिस ऑफर, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब आपके पास जूम की सर्विसेज आ रही है, फिर हमारा लेक्चर भी स्टार्ट होने जा रहा है। वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, रेज योर हैंड। whenever you want to participate in the class, raise your hand. This is very important, right? And जब yes और no का जवाब आप स्टिक और क्रॉस से दे सकते हैं। आपको कोई बात बहुत अच्छी लगे तो आप जो है उसका जवाब दे सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा कि भाई you will have 10 different teachers for 3 months in just rupees 6,000। तो ये ऑफर अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एक हार्ट भेज सकते हैं, एक पार्टी पोपर बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट है, उसको आपको लगता है कि उसने बहुत अच्छा बोला है, तो आप उसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू मस्ट यूज। आपके पास जो है वो सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल मिलते हैं बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं गूगल क्लासरूम से। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट करवाएंगे आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल जाएगी। ये हमारी पूरी डेटाबेस है जहां से आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं। ये आपकी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर कर दिए। इस क्लास वर्क पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये फाउंडेशन लेवल जो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज आपका पहला।
उसके अंदर जो भी लेक्चर्स होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, और उसके टेस्ट भी अपलोडेड है। टेस्ट सैटरडे को दिए जाते हैं, उससे पहले कोई टेस्ट में अपेयर ना हो तो बेहतर होगा। टेस्ट में अपेयर होइएगा सैटरडे और संडे को, ठीक है। संडे को हम रिजल्ट अपडेट करते हैं 6 बजे। तो पहले आप लेक्चर्स को अटेंड करें, फिर आप टेस्ट। गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर ही उसका लिंक आ जाएगा, जैसे ही आप लोगों को ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करें। ठीक है बेटा, ये नोट्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, देखिएगा। ये नोट्स आपके पास आ चुके हैं, और आज का आपका पहला जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है, और वो बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, कितने लोगों के जहन में ये बात आती है, आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ चुके हैं। माइक के कंट्रोल्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा ना हो आपके घर की आवाजें मेरे घर में आना शुरू हो जाए। अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं होती ना, घर की आवाजें एक घर की आवाजें एक घर में ही रहनी चाहिए। चले, बस आपकी आवाज है काम। मेरा आपसे एक सवाल है, कभी आप लोगों ने सोचा है व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश? जितने लोगों ने सोचा है हैंड रेस कर दें। व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश? व्हाई डोंट वी हैव व्हाई डोंट वी हैव फ्लुएंसी? व्हाई आर वी स्टिल लर्निंग इंग्लिश? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम आज भी लैंग्वेज क्लास में बैठे हो। सर, आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, बट स्टिल आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। Sir, what mistakes do I make in writing and speaking? सर ऐसा बताइए ना सर, क्या गलतियां करते हैं? ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सवाल का जवाब ये सवाल का जवाब मैंने जमा कराया था मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड देयर वर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स वर सिटिंग। वो एक रैंडम क्वेश्चन आया था, तो मैंने जवाब ये दिया। तो अब वो जवाब मेरे लेक्चर का हिस्सा बन गया है, क्योंकि वो उस जवाब पर पूरी क्लास खड़ी हो गई थी, और वहां जितने भी 7-8 प्रोफेसर बैठे थे वो भी खड़े हो गए थे, सारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ये बात में दम है। स्कूल लाइफ से लेकर आज तक इंग्लिश को पढ़ाने का जो तरीकेकार है हमारे स्कूल्स के अंदर, वट एवर द पैटर्न वी फॉलो इन आवर स्कूल्स, यू normally read a chapter, and after that you come up with difficult words. जो मुझे याद है, हम स्कूल लाइफ में यही करते थे ना, वी यूज्ड टू डू रीडिंग, आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन आंसर्स, डिक्टेशन वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस। राइट और रॉन्ग? याद करें स्कूल लाइफ। चैप्टर रीडिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, डिक्टेशन। मुझे तो अब बहुत अच्छे से याद है, क्लास 1 से लेकर 8 तक यही चला है। अच्छा, इससे एक फायदा हुआ है, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई है। वी हैव वोकैबुलरी, दिस इज अ गुड थिंग, बट वी हैव इम्प्रूव्ड आवर वोकैबुलरी। लेकिन इस वोकैबुलरी का बेटा क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वोकैबुलरी? बिकॉज वी कैन नॉट कनेक्ट दीज वर्ड्स। हम इन वर्ड्स को कनेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो कनेक्टिंग वर्ड्स है वो तो हमें पढ़ा ही नहीं। आर्टिकल्स में आज तक याद है हमारी टीचर के स्टेटमेंट, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, बेटा ए एंड दा, बेटा आर्टिकल्स में क्या पढ़ाऊं, 2 दिन रह गए क्लासेस खत्म होने में, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। आ लगाना है, एल लगाना है, दा लगाना है, बेटा मैं क्या पढ़ाऊं? इसके तो प्रेपोजिशंस, बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते, मैं क्या पढ़ाऊं? बस 3 ही प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, एंड। कंजंक्शन, बेटा ये तो आपके सिलेबस का टॉपिक ही नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, बेटा वो 10 दफा पढ़ा चुकी हूं मैं। ये अल्फाज थे टीचर्स के, और ये एक टीचर के नहीं, आजकल बहुत सारे टीचर्स के अल्फाज हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 100 अंग्रेजी के टीचर्स को एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उनकी ट्रेनिंग सेशंस दे चुका हूँ। जब मैं फिजिकली पढ़ाता था, सो आई वॉज एन इंग्लिश ट्रेनर। जिस स्कूल में मैं एचओडी था, तो वहाँ के सारे अंग्रेजी के टीचर क्लास में बैठे हुए होते थे, तो उन सबके हालात से वाकिफ तो मैं था ना, कि वो पढ़ाते क्या है। उनकी क्लासेस की ऑब्जर्वेशन तो मैं लेता था, पूरे स्कूल की, तीनों कैंपसेस की। तो हकीकत ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास और हमारे पास कौन से वर्ड्स नहीं है, वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। सर, ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं?
ऐसे अल्फाज जो आपके वर्ड्स को जोड़ दे, सेंटेंस को जोड़ दे, आइडियाज को जोड़ दे। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है, सर आई एम क्वालिफाइड, सर आई एम civilized, qualified, dedicated, sir I have 2 3 master's degree, but sir when I speak I get stuck, sir I am unable to speak English fluently, my ideas are not assembled into a sentence। पता नहीं क्या होता है सर, वर्ड्स जहन में होते हैं, जबान पर आते हैं तो वो जुड़ते ही नहीं। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, पढ़े लिखे लोगों की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, नॉलेज बहुत है, वर्ड्स भी पता है, जुड़ते नहीं है। वो जुड़ने की वजह ये है बेटा, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। उसकी मैं अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग भी बता दूं, क्योंकि हम लोग रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करते हैं। मेरी लैंग्वेज क्लासेस जब भी हुआ करती थी, 6 महीने का हमारा लैंग्वेज कोर्स था फिजिकली। अब 3 महीने बच्चा ऑनलाइन पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। 6 महीने की क्लासेस के बाद हम बच्चों से एक सवाल पूछते थे, व्हाट हैव यू लर्न इन दिस कोर्स सो फार। अब वो बच्चा लिखता था 100 to 150 वर्ड्स। आपको पता है हर बच्चा क्या गलतियां करता था? आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। यही गलतियां उसकी स्पीकिंग में भी सुनाई दी जाती थी। आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, these mistakes were common in speaking and writing। स्पीकिंग में एक प्रॉब्लम और भी थी, प्रोनाउंसिएशन। 6 महीने सीखने के बाद भी, उसकी एक और वजह बता दूं, लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर ये भी नहीं पढ़ाए जाते 3 चीजें, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। वो लोग हैंड रेस करें इफ यू हैव डन अ लैंग्वेज कोर्स बिफोर, या कभी किसी लैंग्वेज एकेडमी में गए हो, 1 हफ्ता 10 दिन कोर्स कंटेंट देखा हो, पढ़ा हो। वहां पर भी आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस को किसी ने नहीं छेड़ा। कोई नहीं छेड़ता ये टॉपिक्स, क्योंकि जो छेड़ेगा डूब जाएगा। वजह बता रहा हूँ, आर्टिकल्स रूल्स आर वेरी लूज, prepositions have no definite rules, conjunctions are very limited, but उसको पढ़ाने के लिए बेस बहुत ज्यादा बनानी पड़ती है, जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। कंजंक्शन आज के सेशन में स्टार्टर मिल जाएगा। आर्टिकल्स का आज रात 11 बजे लेक्चर आपके व्हाट्सएप पर आएगा। मैं 1 हफ्ता दे रहा हूं, उसको सुनना है 1 घंटा निकाल कर। उसकी एक पीडीएफ भी दूंगा, उसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। आपके पास मंडे से लेकर फ्राइडे तक का टाइम है, 5 days, ऑलमोस्ट आई थिंक 120 hours यू हैव। उसमें से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिएगा। मैं सैटरडे को आर्टिकल्स का टेस्ट लूंगा, कबूल है? एक टेस्ट सैटरडे को लूंगा, ताकि पता चले आपको कि आप कहाँ कितने पानी में, हाउ शैलो यू आर। मैंने अपनी आदत बना ली है पिछले तकरीबन 4 5 हफ्तों से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका टेस्ट दे रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ उसकी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद टेस्ट ले, अपना एहतसाब कर ले वीकली बेसिस पे। अच्छा, मैंने रिजल्ट्स इससे ज्यादा बेहतर आ रहे हैं, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। जो अब बच्चे आ रहे हैं ना, पिछले 1 महीने से मैंने देखा, दे आर इम्प्रूविंग मोर क्विकली, दे आर इम्प्रूविंग फास्टर। ठीक है, तो आज का एक असाइनमेंट आ गया, लेक्चर आर्टिकल्स के नाम। अच्छा, उसकी वजह भी देखें, इस सेंटेंस को गौर से देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी गलतियां क्या है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है यही हमारी गलतियां हैं। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday। हम अगर अपनी राइटिंग के अंदर कुछ गलती करते हैं या स्पीकिंग में, तो वो यही गलतियां हैं, इसके अलावा क्या गलती करोगे बताओ? अटेंड इंपॉर्टेंट इवेंट, पीआईए, इसमें गलती तो हो ही नहीं सकती। गलती जो होती है वो होती है इन 3 चीजों में। सीएसएस का पेपर उठाकर देखो, लैंग्वेज पार्ट, तीनों टॉपिक्स आते हैं, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। और नीचे आ जाओ, बीए, बीकॉम, बीएससी, तीनों टॉपिक्स आते हैं, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। और नीचे आओ, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, क्लास 6 to 8, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन हर इंग्लिश के पेपर में बच्चे को दिए जाते हैं। लेकिन कभी कोई टीचर ये नहीं बताता कि इस पर काम कैसे किया जाए, सीखा कैसे जाए।
तो आर्टिकल्स के ऊपर स्टार्टर मिल रहा है, उस लेक्चर को सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में फिर कल मैं प्रेपोजिशन का लेक्चर भी आपसे शेयर करूंगा, उसकी पीडीएफ भी, और उसके अंदर ही मैंने गाइड किया कि आपको इसको किस तरह से फॉलो करना है, और इसके लिए मैं आपको 2 वीक्स दूंगा, क्योंकि वो लेक्चर जो असाइनमेंट दूंगा वो तकरीबन 12 दिन चलेंगे, रोज आना टुक टुक करके आपको प्रेपोजिशंस को फॉलो करना है। So, content words we already have. Structural words we don't have. Structural words की definition सुनिएगा. Structural words have no meanings, but they make your sentence meaningful. Structural words की अपनी कोई meanings नहीं होती, लेकिन वो आपके sentence को meaningful बना देते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, माइक आपके ऑन है। What is phrase? What is phrase? हैंड रेस करने की आदत डालिए, हैंड रेस कीजिए, अपना आंसर सबमिट कराइए। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज किसे कहते हैं? एनी आइडिया? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फ्रेज कहते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स मिलके ना एक सेंटेंस बनाते हैं। तो वो तो सेंटेंस हो गया, फ्रेज की बात हो रही है। आपने बहुत सारे वर्ड्स को बोलना खुद ही, तो आप कह रही है सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। तो सर वो उन वर्ड्स का एक मिलाने से एक मीनिंग बनता है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इट्स मीन कि ये फ्रेज है। आई ठीक, थिंक इट्स माय ठीक, आइडिया। ठीक है। यस, दुआ। व्हाट डू यू से दुआ? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। A phrase is a group of words which give us some meaning, and a phrase has not a subject, and group of word ये मीन कंप्लीट सेंस मीनिंग देते हैं किसी भी जुमले का, यानी मुकम्मल किसी जुमले का मतलब नहीं देता। तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं फ्रेज की, एक नाउन फ्रेज और एक प्रपोजिशनल। बहुत शुक्रिया। फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स। अच्छा, अगर मैं कुछ थोड़े से वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को जोड़ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई लाइक एन आइसक्रीम, मैंने तकरीबन 4 वर्ड्स को जोड़ दिया, आई लाइक एन आइसक्रीम, क्या ये फ्रेज है? इज इट अ फ्रेज? सर ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। सर ये तो आपने सेंटेंस क्रिएट कर दिया। आई लाइक एन आइसक्रीम, ये तो एक मुकम्मल मीनिंग्स दे रहा है। Phrase is actually a combination of words which gives you incomplete meaning or some meaning. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑन द रूफ, छत पर। मैंने कहा while taking क्लास, क्लास लेते हुए। हाँ, क्लास लेते हुए क्या सर? आगे तो बात कीजिए, अधूरी सी बात कर रहे हैं सर आप। ऑन द रूफ, छत पर। इन द किचन। सर आगे मतलब सर बात समझ नहीं आ रही आपकी, यही बात फ्रेज के अंदर है। अच्छा, फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी बता दो, फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब। ना फ्रेज में सब्जेक्ट होता है, ना फ्रेज के अंदर वर्ब होता है। जैसे एट द बस स्टॉप, इसमें आपको कोई नजर आ रहा है वर्ब, कोई सब्जेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, फ्रेज के अंदर भी 2 वैरायटीज है, अगर आप इसको समझ जाए तो अच्छी बात है, मजा आएगा। आप अगर कुछ वर्ड्स के शुरू में प्रपोजिशंस लगा दें, जैसे इन है, ऑन है, एट है, आफ्टर है, बिफोर है, बिकॉज ऑफ है, वाइल है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। आसान सी बात। लेकिन अगर आपने इन्हीं वर्ड से पहले 3 वर्ड्स लगा दिए, आ, एन और दा, यानी कि आर्टिकल्स लगा दिए, तो बताइए अब आप उसको क्या नाम दे देंगे? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। ठीक है, आसान सी बात है, इसको जहन में बिठाना है। ये बुनियादी बातें हैं आपकी। अभी हम फ्रेज से आगे निकले तो हमारी मुलाकात होती है क्लॉज से। अभी सेंटेंस में नहीं जा रहे, अभी
अभी हम मुलाकात कर रहे हैं क्लॉज से। सर प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा फ्रेज। अब बेटा मेरा जो ना एक एक मिनट बहुत एस्टिमेटेड होता है। मेरे सेशन आप अगर लेट ज्वाइन करें तो कोशिश किया करें रिकॉर्डेड सुन लें, क्योंकि मेरा पूरा लेक्चर एक एक मिनट पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है कि मुझे ये चीज इस टाइम पर पढ़ाती, फिर मेरा लेक्चर आखिर में रह जाएगा, फिर आपसे मैं रिकॉर्डेड सेशन ही शेयर करूंगा। A phrase is a group of words. A phrase is a group of words. अल्फाजों को जब हम मिलाते हैं तो याद रखें बेटा कि वो हमें कुछ मीनिंग्स देते हैं। जैसे मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन इस सेंटेंस से तो एक मुकम्मल मीनिंग्स देती। सो दिस इज नॉट अ फ्रेज। और फ्रेज की जो निशानी है मैंने बताया ना, इसमें सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। तो मैंने कहा वाइल टेकिंग क्लास, सर इसमें तो वर्ब आ गया। ये आपको लग रहा है क्योंकि आपकी नॉलेज में अभी बहुत कमी है, आपको लग रहा है कि टेकिंग वर्ब है। तो फिर आप ये वाला जुमला सुन ले, एट द बस स्टॉप, ऑन द रूफ, इन द क्लास। इसमें तो कोई वर्ब नहीं है, इसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपने कहा जी सर। सो दिस इज अ फ्रेज। अब फ्रेज से पहले अगर आर्टिकल्स लगे हुए हो तो वो नाउन फ्रेज होगा, अगर उससे पहले कोई प्रपोजिशंस लगे हुए हो तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी, इट डज नॉट हैव अ वर्ब, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। लेकिन बेटा जब क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? इट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट हैज अ वर्ब। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ वर्ब। दिस इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लॉज। लेकिन क्लॉज को अभी हम स्टडी कर ही रहे थे कि हमारे पास दो तरह के क्लॉज हमें नजर आने लगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो हम सब हैं अमेरिका के ऊपर मोहताज। मोहताज जिसको किसी सहारे की जरूरत है, ऐसा जुमला जिसे किसी सहारे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल सुनना गौर से, इफ यू वर्क हार्डर, इफ यू लिसन टू मी, इफ यू कम ऑन टाइम। अधूरी बात चल रही है सारी। इफ इट रेन्स, लेकिन सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, लेकिन बात अधूरी है। व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी। वर्ब भी, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, लेकिन बात अधूरी है। जब बात अधूरी है तो इसका मतलब आपका क्लॉज कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब याद है ना सबको, मोहताज। और इंडिपेंडेंट जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, खुद मुख्तार, इसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे हुक्मरानों को है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, सर हसीब स्पीक्स इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर। क्या बात मुकम्मल हो गई? आगे पीछे किसी और चीज की जरूरत है? आई यूज सेल फोन। नो सर। आपने कहा ये बात तो सर आपने पूरी कर दी है। आई टीच इंग्लिश, बात खत्म। लेकिन अब सुनिएगा, अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी। हाँ तो क्या नहीं होगा? आगे बोले सर। अब देखिए इसका मतलब आप आगे सुनना चाह रहे हैं। अंटिल यू वर्क ये हार्ड, डिपेंडेंट क्लास है। ये डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में आपको इफ नजर आएगा, व्हेन नजर आएगा, अंटिल नजर आएगा, एज सून एज नजर आएगा, एज लॉन्ग एज नजर आएगा। और सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन सर ने आपको क्या दे दी है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नजर आएगा। सही है? गॉट इट? अब आपकी जिंदगी में आ रहा है सेंटेंस। वैसे सेंटेंस से पहले वैसे तो मैं वर्ड भी पढ़ाता हूँ कि हमारी जिंदगी में वर्ड आता है। वर्ड आते नहीं आता? हमारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आता है? वर्ड आता है। और वर्ड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो सर ने आज आपको बता दिए। बताइए, बता दिए। कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चर बस। स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब आप लोग खुद सोचें कि आपकी नॉलेज में कितनी कमी थी, हमें वर्ड्स के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं थी। कि जब हमारे, अब हमें ये बात, और कंटेंट वर्ड्स के बगैर स्ट्रक्चरल वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। विदाउट
structural words, content words are useless. Without structural words, content words are useless. Without content words, structural words are useless. They both need each other. इन दोनों के बगैर आप जुमला नहीं बना सकते. ये दोनों आपकी रिक्वायरमेंट में है. जब आपके पास वर्ड आता है तो सबसे पहले बताइए आप क्या क्रिएट करते हैं. सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं? अभी बताया ताजा ताजा. सेंटेंस. अस्तगफिरुल्लाह. Sentence. उससे पहले वर्ड्स बनाए तो क्या Phrase. बना? फ्रेज. छा गई भाई आज. फ्रेम। Yes. फ्रेज. फ्रेज और ज्यादा वर्ड्स आ जाए तो फिर क्या बन जाता है? क्लास। क्लॉज. Clause. और क्लॉज के बाद फिर आपके बनना शुरू हो जाते हैं सेंटेंस. अच्छा, Sentence. बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ दूंगा तो बताइए क्या बनेगा? सोचने वाली बात है. बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. पैराग्राफ. ये चीज मेरे अजीज, पैराग्राफ. और पांच पैराग्राफ्स को जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? ऐसे Chapter. स्टोरी। Essay. ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट. Yes. ठीक है बेटा. चले, अब आ जाइए सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. अ सेंटेंस नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक सेंटेंस का जो इख्तिताम होता है ना सेंटेंस का, वो फुल स्टॉप पर होगा या फिर क्वेश्चन मार्क पर होगा या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होगा. ये तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास जहां पर आपके सेंटेंस का एंड होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा कहां पर एंड होते हुए नजर आएंगे आपको? फुल स्टॉप पर. सब बच्चों को ये बात याद है ना कि what is affirmative sentence and what is negative sentence. अगर नहीं याद तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है. मैं रिफ्रेश कर दिया, लेकिन मैंने रिफ्रेश कर दिया है. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू सेंटेंसेस सर? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. ये क्लास 1 के अंदर हम पढ़कर निकल चुके थे. ठीक है. फिर आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसा सवाल जिसमें, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई सवाल किया जाए. A statement that asks a question is called an interrogative sentence. There are two kinds of interrogative sentence. ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं. Yes no question and question with WH word. फिर आपकी जिंदगी में याद करें imperative sentence आया था. बेटा आप इधर आइए. Come here. तुम अपना मुंह बंद रखो. You keep your mouth shut. You get out from my room. याद आया? Request, order, advice. Please help me. Please listen to me. याद आ गया? Don't make fun of others. Negative imperative. फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आए थे. अलाडी, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया. हुर्रा, ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द मैच. Alas, India have lost the match. Wow, the performance was incredible. Sudden expressions, optative sentence. आप कभी कराची के सिग्नल्स पे चले जाए, बहुत दुआएं मिलेगी आपको. May Allah give you long life. अल्लाह तुझे बहुत सा दे. अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे. मुन्ने दे दे मुन्ने. बहन के साथ भी जा रहे हो तो वो तुम्हें बीवी बना देगा. बहन को बना देगी या बना देगा, लेकिन दुआएं बड़ी मिलेंगी आपको. May Allah give you long life. May all your dreams come true. May you have many more. Happy birthday to you. May you have many more. दुआइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और इसके आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में भी आता है हुर्रा, और आप इस तरह के एक्सप्रेशंस लगाते हैं उसके बाद भी आता है. आखिर में फुल स्टॉप भी आ सकता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आ सकते हैं, फुल स्टॉप भी आ सकते हैं. मैं आपसे अगर कुछ सवाल करूं तो आप जवाब दे देंगे. दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. बताइए ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, या ये बाकायदा पूरा एक सेंटेंस है? सर ये सेंटेंस है कंप्लीट. इस सेंटेंस को दूसरे अल्फाजों में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकता हूँ. हाँ Yes, sir. कैसे? बिल्कुल कह सर, सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर इसमें
लेकिन क्योंकि सर इसमें गोइंग आ रहा है ना, तो वो जा रही है, ये जाने हमें दो, कंफर्म नहीं है कि वो किस जगह पे जा रही है। जाने दो, वेकेशन कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए, आप नहीं बताना चाह रही हो कहाँ जा रहे हैं, सर बस इसको सेंटेंस आपका मुकम्मल है क्योंकि आखिर में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। द क्यूरियस लिटिल किटन, क्या है ये? सर ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज अगर है तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। बिल्ली के बच्चों को बना दे वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कैट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म डॉग हो जाएगी, है भाई? यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसमें। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, क्लॉज नहीं है, तो फिर क्या बचा? फ्रेज सर फ्रेज। फ्रेज अब फ्रेज में ये Phrase. कौन सा फ्रेज है, नाउन या प्रेपोजिशनल? सर नाउन कैसे Noun. पहचाना सर? वो आपने एक नुस्खा दिया है ना, आ सर एंड समझ दा, तो पहचान लिया। Yes, अंडर द ब्रिज, क्या है ये? सर ये फ्रेज है। फ्रेज Prepositional. फ्रेज है। क्योंकि अगर क्लॉज बोल दिया तो मैं तुमसे पहला सवाल क्या करूंगा, बताओ सर सब्जेक्ट, डिपेंडेंट बताओ सब्जेक्ट और बताओ वर्ब। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबेगा। डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट। तो क्या होगा उसके बाद? सर नहीं पता, आप छुपा रहे हैं कुछ बात, बताइए, पूरी बात कीजिए सर। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। सर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज Independent. क्लॉज Independent clause. It is a complete sentence giving you a complete sense. A delicious chocolate cake. A delicious chocolate cake. Clause है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर दीजिए। केक, इसकी फर्स्ट फॉर्म पेस्ट्री, सेकंड फॉर्म केक, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो पेस्ट्री है, सेकंड फॉर्म केक है, थर्ड फॉर्म आप नाउन बताओ। फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज है। क्लॉज कैसे हो गया? यस अक्रॉस, सर अक्रॉस यस द सर ये स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट, फ्रेज फ्रेज। फ्रेज prepositional या नाउन? prepositional क्योंकि शुरू में preposition, क्योंकि शुरू में Yes, preposition है। क्योंकि if you, clause जी, Yes. if you study hard, dependent डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि dependent, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे क्या होगा सर? होगा क्या सर? कुछ भी नहीं होगा। the tall oak tree, phrase है sir. it's a phrase, it's a phrase। inside the house, Prepositional. very Yes. good, because she was, Yes. because she was tired। Prepositional. Dependent clause डिपेंडेंट क्लॉज, Dependent क्योंकि clause. सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, शी और वॉज। आ गई बात समझ? बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई। अगर आज अभी ये रात में सोने से पहले आपने ये देखो, जो मैं लेक्चर देता हूँ ना, उसके साथ एक्सरसाइज लाजमी जुड़ती है। और वो एक्सरसाइज रात में सोने से पहले और अगले लेक्चर से पहले पहले, यानी कि कल के लेक्चर से पहले पहले ये सॉल्व हो जाए, और इसको नोटबुक में सिर्फ जवाबात लिख के क्रॉस चेक कर लो कि तुम्हारे जवाबात सही है, और उसमें दो आंसर गलत लिख के बता दो वो कौन से दो जवाबात गलत। ठीक है, चले आगे चलिए। अब आपके पास आ गई है वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। आपकी अंग्रेजी के अंदर जो सेंटेंसेस आते हैं वो सिंपल है। अच्छा, अब देखो सिंपल सेंटेंस के बारे में कितनी गलत इंफॉर्मेशन आपके पास है। व्हाट डू स्टूडेंट्स नॉर्मली थिंक कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो वो सिंपल है। आई स्पीक इंग्लिश, ये भी सिंपल सेंटेंस है। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ये भी सिंपल सेंटेंस है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये भी सिंपल सेंटेंस है। Why do you speak English? This is also a simple sentence, क्योंकि simple sentence is equal to independent clause। ये आपको मुकम्मल मीनिंग्स देता है। वो चीज अलग है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा आप अपने स्पीकिंग में सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, तो इसका मतलब है आपको एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना है,
जैसे सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज अ simple sentence. I understand your lecture. It is a simple sentence. अगर आपसे मैं ये कह दूं कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जरा जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के लिए आपको एल्फी की जरूरत पड़ेगी, और उस एल्फी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए जरा इन कंपाउंड्स वर्ड ना, एल्फी 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 जोड़ने का काम करती है। तो ये जो एल्फी है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इधर देखिए, कंजंक्शन, लिंकिंग वर्ड्स। अब आप यहां पर देखिए, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरीज। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मैं अलग कर दूं, क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं सर, ओके, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरीज। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बेहतर करें, आइडियाज को जोड़िए। आपने जोड़ दिया, लेकिन बीच में क्या लगाया आपने? एंड। एंड का मतलब और, कंजंक्शन। कंजंक्शन। शी लव्स प्लेइंग सॉकर, लेकिन शी ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग। उसे सॉकर खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे स्विमिंग में भी करने में बहुत मजा आता है। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, उसने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए लिहाजा उसका ए ग्रेड आ गया। आई कैन वॉक टू वर्क, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, और या फिर मैं बस भी ले सकता हूँ, जैसा तुम्हें आसानी हो। पैदल चलते यार, नो प्रॉब्लम। द स्काई इज क्लियर, इसीलिए वी शुड गो आउटिंग, वी शुड गो आउटिंग टुनाइट। कोई तूफान वूफान नहीं आ रहा, वी शुड गो आउटिंग टुनाइट। आ गई बात समझ? अगर मैं आपको 20 जुमले दे दूं और कहूं कि जरा इसके बीच में एंड लगाओ, बट लगाओ, देयरफॉर लगाओ, और लगाओ, सो लगाओ, तो क्या आप उनको पढ़ के बीच में लगा देंगे? ये कोशिश कर लेंगे? उन 20 जुमलों में से आप 6 गलतियां करेंगे, लेकिन उन 6 गलतियों से फिर सीखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये क्यों लगा। ठीक है? Yes, कहीं sir. पर, अच्छा, कहीं पर हम एंड लगाते हैं, वहां बट भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर स्पीकिंग स्टाइल कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, फिर तीसरा आपके पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया डिपेंडेंट क्लॉज का, और आप लोगों ने मुझे खुद बताया अपनी गुनाहगार जबान से, गुनाहगार लोग हैं हम लोग। देखिए, पहचानिए कौन है ये, अभी अभी ताजा ताजा पढ़कर आया आप लोग, कौन है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़कर आ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कोई बहुत बड़ी और मुश्किल बात बताई है मैंने अंग्रेजी में, या बहुत बुनियादी बात बताई है? बहुत बुनियादी बात है कि अगर हमने एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी आप लोगों ने दोनों बातों को गौर से सुना। अब अगर मैं आपसे कहूं, इधर गौर से देखिए, शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। बताइए, ये मैंने कौन सा सेंटेंस क्रिएट किया है? मैंने दो कौन से सेंटेंसेस को जोड़ा है? कंपाउंड। दो कंपाउंड। सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ दिया, और जब उनको जोड़ा तो बताइए क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस बना कि नहीं बना? तो यहां पर ये आ गया कंपाउंड, और उसके अंदर मैंने एक ऐड कर दिया, कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। मोहताज, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ताजा ताजा पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा जबान स्लिप हो रही है, लेकिन बातें बहुत आसान सी है। सर ने दो सिंपल सेंटेंसेस के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो बन गया आप
का कौन सा सेंटेंस? Compound and complex sentence. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुबारक हो, आपने सारी सेंटेंस की वेरिएशंस को पढ़ लिया। अब सर आपसे ये कह रहे हैं कि आप जरा इन सेंटेंस, पहले ये वाली एक्सरसाइज कीजिएगा, ये जो दूसरे नंबर पर है। इससे जो ना पता है क्या होगा, आप इन वर्ड्स को फोकस कीजिएगा। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं? ये देखिए, अब मुझे बताइए, जो पहला सेंटेंस है, शी लव्स टू सिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? Simple sentence. Simple है। इट्स अ सिंपल सेंटेंस। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरीज, ये कौन सा सेंटेंस सही है? compound Compound sentence. एंड लगा के कंपाउंड है। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन की And. जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने लगा दिया। देखिए, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया कंपाउंड से कंपाउंड सेंटेंस। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई विल गो फॉर अ वॉक। It's a complex sentence. It's a कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। complex sentence. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. Compound. It's a compound sentence. yes But, so, and, therefore. The sun is shining brightly, so let's go for a picnic. इसीलिए चलो पिकनिक पे चलते हैं। बताइए। Compound. कंपाउंड compound sentence इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। अगर ये इन सारे सेंटेंसेस में आपने लिख लिया आज रात सोने से पहले कि ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, और उसके बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लिया, तो बस आप आज रात अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो वाकई में आपकी बहुत अच्छे से मदद कर रहा है। और इसी टॉपिक के ऊपर आपका सैटरडे को होगा टेस्ट। सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसके साथ हम पढ़ेंगे इसकी मजीद फॉर्मेशंस। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट से सिर्फ जुमला बन सकता है? क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो उनका नाम क्या होता है? फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। और इस तरह से कल का लेक्चर खत्म होगा। फिर एक इसके साथ असाइनमेंट मिलेगा। सर फिर अगले हफ्ते क्या पढ़ाएंगे? फिर अगले हफ्ते हम प्रोनाउन फैमिली की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन दो लेक्चर्स को सुनने के बाद फिर आपका होगा एक वीकली टेस्ट। 3 टेस्ट आएंगे आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और उसका रिजल्ट मंजर आम पर आएगा संडे को तकरीबन 6 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, आपके पास एक और लिंक आ रहा है, उससे आप अपनी अगली क्लास ज्वाइन कीजिए मिस कोमल के साथ। शी इज योर, हमारे पास 2 मिस कोमल है। जो दोपहर में मिस कोमल थी वो अलग थी, अभी जो मिस कोमल आपको ज्वाइन करेगी वो अलग। शी इज योर डिस्कशन टीचर, प्लीज ज्वाइन हर and make the most of your time. Assalamu alaikum.